Okay, so we are continuing with this course, wastewater management. This is lecture number 13, and I hope my voice is clear to you and the screen is also shared. In the one and two lectures, previous lectures, like lecture number 11 and the lecture number 8 में voice तो proper है, but screen share होने में कुछ issue हो गया है. So I'll send you notes. Okay, just open that notes and just click on the video, open that video. You will clear मतलब you will get the all thing है ना, so you will get a clear understanding of the topic. So I don't think so you will feel some problem in understanding, right? तो just notes open करना है आपको, the audio voice continue आपको सुननी है, the all thing will be clear. Okay, उसके बाद भी कोई इशू आता है तो you can ask me, right? So let's start, and screen also I hope it will be sharing to you. Okay, so after the tackling filter and RBC, we are moving on the next unit, which is very important topic, that is activated sludge process, right? Activated sludge process is the, you can say, a part of the secondary sedimentation tank. Okay, it's a tank in which aeration, we do aeration process, and we will analyze something like कि बायोमास कैसे जनरेट हो रहा है, बायोमास किस रेट में जनरेट हो रहा है, राइट? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से जनरेट हो रहा है, एंड देन विद द टाइम हाउ द organic matter, the concentration of organic matter is decreasing. ठीक है, with the time how these values are changing, okay, rates are changing, right? So by varying something or by doing something, how we can increase the efficiency of our tank, right? So we will do some conceptual thing in this topic, and this is very important topic. Many questions are been asked in the competitive examinations, right? So activated sludge process में basically दो चीजें आपको समझनी है. एक चीज तो जैसे ये कर्व आपको सामने आपको शो हो रहा होगा, okay? In this curve, one is the this line, right? एक तो देखिए ये लाइन आपकी है, ये कर्व है, okay? And one is the, another one is the this curve. Okay, so this curve is your organic matter curve. This curve is your organic matter curve. Means जो भी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है, that organic matter is considered as food. वो खाना है, वो फूड है किसका? फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर दी बैक्टीरिया, फंजाई, उनके लिए वो खाना है, वो फूड है. तो जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, वैसे वैसे फूड जो है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी. ओके ओके, दैट हमको पता है. वो कंज्यूम करते जाएंगे, डिकम्पोज करना शुरू होगा, तो दिस कर्व इज गोइंग डाउन लाइक दिस. ओके, यहाँ पे लिखा है OM कर्व, organic matter curve. Next is the microorganism curve. Okay, this is the microorganism curve. Microorganism is increasing as the organic matter with the time, as organic matter passes some time. Okay, the biomass जैसे जैसे microorganism एक्सट्रैक्ट करेंगे एनर्जी, किसमें से? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट? अपना खाना खाएंगे, एंड देन दे विल प्रोड्यूस सम बायोमास. ओके, and biomass is also considered as one of the microorganism concentration. So microorganism concentration के साथ साथ biomass भी increase हो रहा है, so due to the decomposition of organic matter, that's why this curve is going up. Okay, I'm repeating again. जैसे जैसे organic matter, देखिए यहाँ पर एक फिगर आपको शो कर रहा है, this one organic matter इसका फूड है, ठीक है? This is the microorganism. So in the presence of oxygen, this microorganism will extract carbon or will extract the energy from this organic matter, right? And it will turn into the waste biomass. This biomass, इस biomass waste में भी क्या generate होंगे? Microorganism generate होंगे. This biomass is also equivalent to the microorganism. तो microorganism जैसे जैसे decomposition further increase होते जाएगा, decomposition process फॉरवर्ड होते जाएगी, वैसे वैसे बायोमास कंसंट्रेशन भी मिलेगा, अल्टीमेटली हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा मिलेंगे. तो वी कैन से बायोमास और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज्ड
will increase with the time. Okay, it will increase in the first phase, in the second phase, in the third phase also, but after a certain time, after a certain period of time, एक बहुत अच्छे समय के बाद क्या होगा कि when the organic matter concentration is very very less, है ना, देखिए फर्स्ट फेज में ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन ये थी, सेकंड फेज में ये और डिक्रीज हो गई, थर्ड फेज में और डिक्रीज हो गई, तो जब ये कंसंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी तो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है, जो नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी कॉलोनी, वो तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि बायोमास आपका क्या है, बढ़ रहा है डिकम्पोजिशन के साथ साथ, बट उनके लिए जो खाना है, जो फूड है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे फूड डिक्रीज होते जाएगा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द बायोमास इज स्टिल इंक्रीजिंग, और फूड की जो क्वांटिटी है वो बहुत लिमिट होते जा रही है, वो डिक्रीज होते जा रही है, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आगे खाना नहीं बचेगा, फूड कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एज कर्व इज डिक्रीजिंग। सो क्या होगा, दे विल स्टार्ट टू किल ईच अदर, टू ईट ईच अदर। जैसे मैंने बताया था एंडोजीनियस रेस्पिरेशन, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जब ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरिया फंजाई हैं, वो आपस में ही एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, और एक दूसरे से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो आपस में एक दूसरे को किल करते हैं, तो उनकी नंबर्स भी एक टाइम के बाद क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो you can say after this point endogenous respiration will start and microorganism will kill each other. Okay, so that's why after this point, this peak, microorganism concentration will also fall down. Okay, और ऑर्गेनिक मैटर तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है, दैट इज ऑल्सो थिंग। दिस कर्व आप समझेंगे कि ये कर्व ऐसा पीक लेने के बाद डिक्रीज क्यों हुआ, इंक्रीज क्यों हुआ, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू दी बायोमास, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, बायोमास इंक्रीज हो रहा है। बायोमास क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट थे हमारे, वो यू कैन से इंक्रीज हो रहे हैं। टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। यूँ समझिए कि लेट अस से यू हैव you can say earlier you have 5 microorganism, ठीक है। at this starting point or you can say this point, थोड़े टाइम के बाद आपके पास 5 microorganism है, ओके, एंड ऑर्गेनिक मैटर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। आप समझिए 10 नंबर्स का आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, राइट। अब ये 5 माइक्रोऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर। 5-10 को जो है डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा, डिकम्पोज करना भी शुरू करेगा, डिकम्पोज होगा भी ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, बायोमास बनाएगा, ओके। बायोमास से फर्दर क्या होगा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन यहाँ से बढ़ेगी। तो पहले ये 5 थी लेटस से, अभी 5 ही है, ओके। ये कुछ इंक्रीज हो गई लेटस से 5, इसमें 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो गए, लेटस से ये 2 ऐड हो गए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसंट्रेशन कितनी होगी, 7 हो गई, ओके। बट ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन लेटस से 10 थी, तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करा, फूड कंज्यूम करा, तो ये 10 तो नहीं रहेगी अब, ओके। इट विल डिक्रीज टू सम एक्सटेंट, लेट अस से 8, 2 डिक्रीज हो गई, ओके, 8 हो गई, और ये यहाँ 7 हो गई, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इंक्रीज हो गया एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑन द अदर साइड इट विल डिक्रीज, ओके। और टाइम पास होने देते हैं, तो क्या होता है कि हमें देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन यहाँ पे 5 हो चुकी है डिक्रीज होके, और बायो और डिकम्पोजिशन हुआ, बायोमास और बन रहा है, और फिर 3 और इंक्रीज हो गई किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। 7 + 3 10, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10 हो गया है, और ऑन द अदर साइड ऑर्गेनिक मैटर 5 हो गया, अपोजिट हो गया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते जा रहा है और ये डिक्रीज होते जा रहा है, और एक टाइम और पास होगा कि चलिए और डिकम्पोजिशन करेंगे, ये 10 और रेट और बढ़ जाएगा डिकम्पोजिशन है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ चुकी है, खाने वालों की संख्या बढ़ गई है, खाना धीरे धीरे कम हो रहा है, तो रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये 10 जो है इस ऑर्गेनिक मैटर को, जो 5 बचा है, इसको जल्दी जल्दी और डिकम्पोज करेंगे और बायोमास बनेगा, और फर्दर ये संख्या 10 से 12 हो सकती है, एमओ की संख्या, इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या, ठीक है। और जब सारा खाना खत्म हो जाएगा, सारा ओएम खत्म हो जाएगा, इट विल टर्न टू 0, अप्रोक्सीमेट 0। तब ये जो 10, 12, 15 वटेवर जो एमओ प्रेजेंट हैं, ये आपस में एंडोजेनस रेस्पिरेशन करेंगे, आपस में एक दूसरे को किल करेंगे, और ये भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद, ठीक है। दिस इज हाउ दिस कर्व इज गोइंग अप एंड देन गोइंग डाउन, ओके। आपको आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा,
इसके नाम इन्होंने दे दिए जस्ट log 1 log 2 phases, देन थर्ड इज स्टेशनरी phases। यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन अचीव होती है कि डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर भी डिक्रीज हो रहा है। बट द फोर्थ फेज दिस इज एंडोजिनस फेजेस है ना, कि इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में ही एक दूसरे को किल करना शुरू करेंगे, ठीक है। Now coming to the biomass, तो biomass क्या लिखा है, growth of biomass। तो how we can represent the growth of biomass as biological activity is first order kinetic reaction, so this is the representation, dx over dt is directly proportional to capital X। मतलब जैसे जैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी बायोकेमिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे बायोमास भी इंक्रीज हो रहा है। एक्स इज अ बायोमास और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एमएलएसएस मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, बताऊंगा कि क्या होता है। ये सिनोनिम्स हैं, बायोमास मींस एमओ, एमओ मींस एमएलएसएस, ओके। इसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे एक्टिविटी का रेट बढ़ रहा है। ऑब्वियसली ये मैंने आपको समझा दिया थ्योरेटिकली। प्रपोर्शनल का साइन हटेगा तो इट विल मतलब इट विल टर्न टू के एक्स, ओके। के इज द कांस्टेंट। व्हाट इज द के इज द ओवरऑल ग्रोथ रेट कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन one type of the microorganism present in the system and type of organic matter, okay। K is the constant जो डिपेंड करता है MO पे भी और OM पे भी। MO is a microorganism and OM is a organic matter, ठीक है। तो decomposition is the aerobic, then the aerobic then is more than the anaerobic, okay। ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा रफ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि डिकम्पोजिशन जो है वो ऑटो की प्रेजेंस में हो रहा है यहाँ पर, तो डिकम्पोजिशन एरोबिक ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एनारोबिक, that is the thing। और कुछ खास नहीं लिखा है। this is the thing and another is the ds over dt, ds over dt, this is the slope of organic matter curve। ऑर्गेनिक मैटर कर्व तो स्लोप तो डिक्रीज होते जा रहा है ना, मतलब कर्व डाउन होते जा रहा है। और इसमें एक जो कांस्टेंट पिक्चर में आ रहा है दैट इज द, वहाँ पे के था, यहाँ पे अनदर कांस्टेंट है के ई आर, एंडोजिनस डिके रेट कांस्टेंट। तो अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म बायोमास तो इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे प्लस के एक्स था, यहाँ पे जो है डिक्रीज हो रहा है के ई आर, ठीक है। एंडोजिनस डिके कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ओके। तो डी एक्स ओवर डी टी प्रोबेबिलिटी का साइन हटेगा तो माइनस के ई आर इंटू एक्स, ओके। देखिए स्टैंडर्ड थिंग जो बता दी कि फॉर द म्युनिसिपल सीवेज के ई आर इज इक्वल टू 0.06 पर डे, ठीक है, ओके। इसको बाद में देखेंगे। देन फॉर द बोथ द प्रोसेस ए एंड बी अकरिंग साइमल्टेनियसली, अभी जो बोथ द प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली हो रही है, बायोमास भी बन रहा है, ये कर्व डिक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो रहा है, तो ये कर्व ऐसे जा रहा है। इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, dx over dt प्रोसेस इज गोइंग, सो k minus ke r into x, okay, k minus ke r into x, okay। What is the x? x को डीपली आप पढ़ेंगे। x denotes the MLSS और MLVSS। MLSS क्या होता है? MLSS is the mixed liquor suspended solid। You can say the presence of the organic matter को ही दर्शाता है, but presence of microorganism को ये ज़्यादा significantly show करता है कि कितना microorganism एक्टिव है जो organic matter को कंज्यूम करने वाले हैं, खाने वाले हैं, ठीक है। It is taken as indicator of active or living microorganism present in the system, okay, but it includes the dead cell masses and other inorganic impurity present in the wastewater, okay। MLVSS क्या है? It is the in order to avoid okay the जो inorganic impurity है, जो you know non active microorganism है, उसको अगर हम exclude कर दें, उसको अगर हम हटा दें, हमारे पास जो purest active microorganism बचते हैं उनको नाम दिया है MLVSS, उनकी concentration को बोलते हैं MLVSS, indicate for the living and active microorganism present in the system, okay। तो अगर impurity को हटा दें तो MLSS and MLVSS one the same thing, ठीक है। Only one activity writing for the biomass ER process excluded। if endogenous process exclude करते हैं कि ER वाला टर्म को अगर हम हटा देते हैं तो ये कह रहे हैं कि dx over dt क्या बचता है, कि kx बचता है, ओके। ये तो पहले देख ही चुके हैं। if y is the fraction of organic matter, आगे चलते हैं, कन्वर्टेड इनटू बायोमास। अब सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर तो बायोमास में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वो फ्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, बट एक फ्रैक्शन है। ऑर्गेनिक मैटर 100% है तो धीरे धीरे परसेंटेज में वो ऑर्गेनिक मैटर यू नो डिक्रीज होते जा रहा है। तो व्हाई इज दैट फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज डिकम्पोज व्हिच इज गोइंग फॉर डिकम्पोजिशन, दैट इज व्हाई इज द फ्रैक्शन, लेट अस से। एंड फूड को मैंने बोला रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक मैटर इज द फूड फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ds over dt इज इक्वल टू माइनस kds, ओके, वेयर s इज द बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। वहाँ पे देखिए x लिख रहे थे, x यहाँ पर क्या था MLSS माइक्रोऑर्गेनिज्म, यहाँ पे इसका दूसरा भाई जो है
यानी खाना इसका फूड, दैट इज एस, कैपिटल एस, दैट इज फूड और ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसे जैसे प्रोसेस इंक्रीज हो रही है, रेट इंक्रीज हो रहा है, जो फूड है भाई वो तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। ओके, की इज द डीऑक्सीडेशन कांस्टेंट और डिकम्पोजिशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट। ओके, डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। These two equations are representing, one is representing the microorganism, another ds over dt representing the organic matter. Okay, so from 1 and 2 both the equation ये इस तरह से आपको मिल जाएगा, माइनस ds over dt is equal to dx over dt. ओके, 1 and 2, तो आपकी 1 कौन सी है देख लेते हैं। दिस इज द 1, k माइनस के ई आर ओवर एक्स, राइट। तो के ई आर हटा देते हैं तो ये के एक्स ही होता है, ठीक है, के एक्स। तो के माइनस के ई आर मतलब हो गया कि कितना डिफरेंस है, इतना ऑर्गेनिक मैटर था और इतना क्या हो गया, रेजिडुअल है। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, डिफरेंस विल बी द y, डिफरेंस विल बी द कितना डिकम्पोजिशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है y टर्म आ गया। तो माइनस वाई डी एस ओवर डी टी, कितना फ्रैक्शन जो ऑर्गेनिक मैटर का है वो जिस रेट से डिक्रीज होगा उसी रेट से आपका dx ओवर dt, उसी रेट से आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोकेमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, दिस इज द थिंग। व्हाट इज द एएसपी, एएसपी में क्या देखना है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या कहती है, sludge generated from the secondary sedimentation tank mainly consists of active or living microorganism MLSS, hence it is referred as activated sludge। इसका नाम ये कह रहे हैं कि एक्टिवेटेड स्लज क्यों है, क्योंकि ये कि यहाँ पे फिगर आपको शो हो रहा होगा, पीएसटी है, प्राइवेट सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें डिस्चार्ज जा रहा है, एस इज द बीओडी ऑफ दैट। अब ये लॉन्ग चैनल हमने दे दिया, लॉन्ग टैंक हमने प्रोवाइड कर दिया, ये होता है बेसिकली एक तरह का एरिएशन टैंक, ये एक्टिवेटेड स्लज टैंक। ओके, इसमें से ये वाटर गया आगे, एसएसटी इज द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें वाटर ट्रीट हो गया। जो ट्रीटेड वाटर है ये हमारे लिए एक तरह से बहुत अच्छा काम करता है, इसका कुछ फ्रैक्शन, कुछ पोर्शन हम रीसर्कुलेट करेंगे, क्यूआर वापस से इसमें ऐड कर देंगे इसमें अपने एरेशन टैंक। दिस recirculation of this active microorganism is we are using to treat the bad water which is coming from the PST. Okay, little bit similar concept as we have studied in the Teklich filter, right? तो इसलिए इसका नाम क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ओके, स्लज इज एक्टिव। तो यहाँ पे देखा है which is the being circulated back into the aeration tank in order to carry out the decomposition of organic matter present in the wastewater. Hence this process of referred as the activated sludge process. Okay, fine. ESP is a suspended growth system. ड्रिंक फिल्टर और आरबीसीएफ वो क्या था, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम था, इट इज सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर बोथ आर इन द सस्पेंशन फॉर्म। ESP is the suspended growth system in which flow pattern regime may be only may be any of the following। जो flow pattern है वो दो तरह से डिफाइन करा है ESP का, one is the complete mix, another is the plug flow mix। okay, तो complete mix में क्या है, this is for basically for the lower discharge। okay, it is generally used for the smaller plant of capacity less than 25 mld। okay, in this case complete mixing of the incoming activated sludge with the waste water is done mechanically in order to increase the opportunity of contact between the organic matter। तो जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे ना फ्लोकुलेशन प्रोसेस में, वैसे यहाँ पर रोटर वगैरह लगाया है इस तरह से, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एरेशन भी हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रोटर इस तरह से मूव कर रहा है, तो आपका स्लज जो है प्रॉपर मिक्स हो रहा है, स्लज इसमें वेस्ट वाटर में। ठीक है, this is doing by the mechanically, and the microorganism that turns in increases the rate of decomposition of organic matter। ठीक है, वो एक्टिव हो रहे हैं और वो डिकम्पोजिशन रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। स्क्वायर और सर्कुलर टैंक फिटेड विद द मैकेनिकल एरेटर आर यूज इन दिस केस। ओके, मैकेनिकल एरेटर डिवाइस होती है जिसमें ऑक्सीजन आपकी जो है नोजल से बाहर आती है। Operational stability of the system with respect to the shock loading is comparatively more as homogeneous environment is created by mixing। okay, operational stability of the system जो है वो अच्छी होती है। ओके, एज इट इज क्लोज, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता है। ओके, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज F/M रेशियो एंड ऑक्सीजन डिमांड इन दिस केस इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एरेशन टैंक बिकॉज homogeneous environment due to the mixing, so food is same at the each point, so the oxygen requirement is same at the each point। क्या कह रहे हैं कि इसमें जैसे एक टैंक है और इस टैंक में एक बार आपने वेस्ट वाटर डाल दिया तो इस टैंक में फर्दर
बार बार रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेस्ट वाटर एंटरिंग इज नॉट चेंजिंग, दिस इज कांस्टेंट. तो जब वेस्ट वाटर इज कांस्टेंट मींस ऑर्गेनिक मैटर इज कांस्टेंट. इफ ऑर्गेनिक मैटर इज कांस्टेंट तो डिकम्पोजिशन जिस रेट से होगा वो भी डिफर नहीं करेगा. तो डिफर नहीं करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई जितनी इस पॉइंट पे चाहिए थी उतनी सप्लाई इस पॉइंट पर चाहिए होगी. ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ एरेशन हियर. ओके, कि फूड भी सेम है, दैट्स व्हाई. ओके, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? एफ बाई एम रेशियो इज द वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो. आगे डीपली पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला वगैरह भी. एफ बाई एम, एफ रिप्रेजेंट फूड, एम इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड जिसको खाना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने वाला है. इफ एफ बाई एम रेशियो इज इंक्रीजिंग यानी फूड इंक्रीज हो रहा है, ओके, खाना बढ़ रहा है, तो या यू कैन से एफ इंक्रीजिंग और एम इज डिक्रीजिंग. ओके, तो फूड खाना बहुत ज़्यादा है और खाने वाले लोग कम है, तो फूड बच जाएगा. फूड बच जाएगा नहीं, ऑर्गेनिक मैटर टैंक में एज इट इज रह जाएगा. एज इट इज रह जाएगा मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो रही है, कम है. एफ बाई एम रेशियो अगर कम है मतलब खाना जितना भी है कम है, बट एम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, खाने वाले लोग ज़्यादा है, तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना. ऑर्गेनिक मैटर कंसेंट्रेशन जल्दी फिनिश हो जाएगी, जल्दी डर्ट क्लीन हो जाएगी, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी. तो आपको इस तरह से कंसेप्चुअली रिलेट करना है फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो को आपकी एफिशिएंसी से. सो यू विल गेट द basic understanding of this topic. Okay, another one is the plug flow. Plug flow is it is a conventional process which can be used for the plant of capacity greater than 300 mld. तो ज़्यादा mld का अगर यूज कर रहे हैं तो आपको प्लग फ्लो प्रोसेस ही यूज करना पड़ेगा. तो व्हाट इज दैट? ये कैसे डिफरेंस है आपका कंप्लीट मिक्स से देखते हैं. प्लग फ्लो implies that waste water move progressively along the length of tank, remaining essentially unmixed throughout the volume of tank. एक लॉन्ग नैरो चैनल बनाएंगे, इसमें वेस्ट वाटर जो है कंटिन्यूस मूवमेंट करेगा. उसमें ऐसा नहीं एक बार फिल करके छोड़ देंगे जैसे पहले में कर रहे थे. इसमें कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहा है, एक तरफ से जा रहा है एक तरफ से निकल जा रहा है. ठीक है, इन दिस केस लॉन्ग नैरो चैनल आर यूज हैविंग नो प्रोविजन ऑफ मिक्सिंग इन इट. यहाँ पर हम कोई मैकेनिकल मिक्सिंग यूज नहीं कर रहे हैं, कोई रोटर वगैरह नहीं लगा रहे हैं. ऑपरेशनल स्टेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू शॉक लोडिंग इज कंपैरेटिवली लेस. ओके, शॉक लोडिंग नहीं है क्योंकि इसमें आपको जिस तरह से वेस्ट वाटर आ रहा है इस तरह से यहाँ से वेस्ट वाटर चले जा रहा है. ठीक है, एफ बाई एम रेशियो एंड ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीजेज अलोंग द लेंथ ऑफ टाइम. क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इतनी सप्लाई है और वहाँ पर भी आप सप्लाई उतनी दोगे, बट जो यहाँ पर वेस्ट वाटर आपका आ रहा है वो आगे चल के यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन वो यहाँ से तक ट्रीट भी हो रहा है. तो जो जिस इस पॉइंट पे जो ऑर्गेनिक मैटर आपका है वो कुछ हद तक ट्रीट हो चुका है, तो इस पॉइंट पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी. तो यहाँ पर देखिए लाइन को दोबारा पढ़ेंगे. एफ बाई एम रेशियो एंड ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीजेज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ टाइम, करेक्ट, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ टाइम. तो फूड इस पॉइंट पे ज़्यादा है, इस पॉइंट पे कम है, ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है. ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी है किसकी? प्लग फ्लो की. Another one is the extended aeration process. This will see in the next lecture. It's some important formulas and derivation we will see. So it will take 2-3 lectures to understand this topic deeply. Got it? Okay, thank you very much.